ناظرین آداب، بدلتا منظر کے شمارے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ریاست جموں و کشمیر میں عوامی خدمات سے منسلک شعبہ جات کی بدلتی رفتار کا سرسری جائزہ پیش کیا جائے۔ آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں اس شمارے کے اہم موضوعات پر۔ سری نگر میں خواتین کی حفظان صحت کے لیے منفرد مہم۔ بارہمولہ میں ایم جی نریگا کے تحت تعمیری کام شروع۔ بھاوے والے ماتا مندر کی تجدید و مرمت اور بحالی کا کام۔ لاک ڈاؤن میں نرمی بولیوارڈ روڈ کی تجدید و مرمت دوبارہ شروع۔ آرگینک فارمنگ بہترین طریقہ کاشتکاری اور گیم چینجر۔ سری نگر سے تعلق رکھنے والی ایک جمع سالہ خاتون عرفانہ زرگر نے خواتین کی بہتر صحت کی خاطر ذاتی خرچے پر ایک ایسی مہم شروع کی ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ اس مہم کے تحت عرفانہ سری نگر کے اطراف و اکناف میں واقع پبلک بیت الخلا میں خواتین کے لیے حفظان صحت فراہم کرنے والی مصنوعات جیسے سینیٹری پیڈز رکھتی ہیں تاکہ حاجت مند خواتین وقت ضرورت ان کا استعمال کر سکے۔ دیکھیے یہ خاص رپورٹ۔ سری نگر سے تعلق رکھنے والی جوان سال خاتون عرفانہ زرگر نے خواتین کی بہتر صحت سے متعلق ایک ایسی منفرد مہم شروع کی ہے جس کی وادی کشمیر میں کافی ستائش کی گئی۔ عرفانہ زرگر نے ایوا سیفٹی روڈ نامی ایک ایسی مہم شروع کی ہے جس کے تحت وہ سری نگر کے اطراف و اکناف میں واقع پبلک بیت الخلاؤں میں خواتین کے لیے ماہواری کے دوران حفظان صحت فراہم کرنے والی مصنوعات جیسے سینیٹری پیڈز رکھتی ہیں تاکہ حاجت مند خواتین وقت ضرورت ان کا استعمال کر سکیں۔ میرے دماغ میں یہ کانسیپٹ آ گیا کہ میں ایک کٹ بناؤں، میڈی کٹ۔ تو اس میں ایک تو سینیٹری نیپکنس رکھوں گی اور پینٹیز رکھوں گی اور ساتھ میں اس کے ساتھ ہینڈ واش بھی رکھوں گی تاکہ مطلب ایک تو لیڈیز کو انکنڈیشنلی کہیں پہ بھی سائیکلس ہو جاتے ہیں تو ان کو ڈرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، وہ کسی بھی واش روم میں جا سکتی ہیں اور کہیں پہ بھی یہ سامان لے سکتی ہیں۔ اور اس میڈی کٹ کا نام میں نے رکھا ہے ایوا سیفٹی کٹ۔ ایوا مینز وومن، سیفٹی مینز سیکورٹی، ڈور مینز واش روم کا دروازہ۔ تو میں نے سوچا کہ اگر یہ چیزیں رہیں گی تو یہ مجھے لگتا ہے زیادہ اچھا رہے گا، کیونکہ بہت ساری لیڈیز سڑک پہ افورڈ بھی نہیں کر پاتی ہیں، یا پینٹیز کبھی پیسے نہیں ہوتے ہیں جیب میں، یا مطلب اسٹین لگنے کی وجہ سے مطلب بہت ساری لڑکیاں ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں کہ اب کیا کریں ہم سڑک پہ، کوئی ہمیں ٹیز نہ کرے۔ تو پھر میرے دماغ میں جب یہ کانسیپٹ آ گیا تو پھر میں نے یہ واش رومز میں سٹارٹ کیا۔ عرفانہ زرگر کی جانب سے شروع کی گئی اس منفرد مہم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ راہ چلتی خواتین یا تعلیمی اداروں وغیرہ میں زیر تعلیم یا کام کرنے والی خواتین کو اچانک اگر کوئی متعلقہ مسئلہ پیش آئے تو انہیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کئی ایسی خواتین ہوتی ہیں جنہیں سڑک پر اچانک ایسی مشکل درپیش آ جاتی ہے، یہاں حکومت نے اس کے لیے کوئی سسٹم نہیں رکھا ہے، تو اس معاملے کے متعلق سوچ کر عرفانہ نے اپنے ہاتھوں سے ایک کٹ تیار کیا ہے جس میں انہوں نے خواتین کے لیے ماہواری کے دوران حفظان صحت فراہم کرنے والی تمام مصنوعات رکھی ہیں اور انہیں سری نگر کے پبلک بیت الخلاؤں میں رکھنے کی مہم شروع کی ہے۔ 15 واش رومز کا مطلب یہ تھا کہ میں مطلب یہ 15 واش روم سری نگر سٹی میں کور کروں، اس کے بعد میں ولیجز میں جاؤں، بٹ بدقسمتی سے جو یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھر سارا مطلب بند ہو گیا، تو اس کے بعد میں نے سٹارٹ کیا گھر میں ہی، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے بہت پریشانی ہوتی تھی ان سب چیزوں کی۔ تو میں نے ایک پوسٹ بنایا جو میں نے ایف بی پہ شیئر کیا اور ٹویٹر پہ بھی شیئر کیا، اور میں نے ان کو بولا آپ مجھے ڈی ایم کر سکتی ہیں، آپ کو کوئی بھی نمبر کہیں پہ ڈسکلوز نہیں ہو جائے گا۔ تو انہوں نے پھر مجھے بڑا اپریشیٹ کیا اس چیز کے لیے، مطلب بہت ساری اس میں سسٹرز تھی، مدرس تھے، ایون کہ میرے کو جینٹس نے بھی بہت کالز کیے اور میسیجز کیے، تو میں پھر ڈور ٹو ڈور یہ سروس دینے لگی۔ عرفانہ زرگر سری نگر میونسپل کارپوریشن میں
हेल्प लाइन असिस्टेंट के बतौर अपनी खिदमत अंजाम देती हैं। इरफाना अपनी तनख्वाह का निस्फ हिस्सा सर्फ करके इस मुहिम को फिल वक्त ज़ाती तौर पर चलाती हैं। ताहम उन्हें उम्मीद है कि आगे चलकर लोग, खासकर ख़वातीन, उनकी मदद के लिए आगे आएंगी। बदलता मंजर से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी सखावत है। मैं फिल वक्त ज़ाती खर्च पर ये मुहिम चला रही हूँ। ताहम उम्मीद है कि आगे लोग, खासकर ख़वातीन, दस्ते ताउन पेश करेंगी। मैं श्रीनगर के तमाम अवामी बैतुल खुलाओं में इन किट्स को दस्तयाब रखने को यकीनी बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगी। इसमें मुझे ज़्यादा सपोर्ट मेरी मामा ने किया, क्योंकि उसने मुझे बोला ये चीज़ बहुत अच्छी है, अगर आप ये काम करना चाहती हो तो आप कर सकती हो। लेकिन एक्चुअली ये जो मैं लाती हूँ ये मुझे सैलरी से जाता है, तो थोड़ा सा पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलें होगी, क्योंकि मेरी सैलरी उतनी मतलब ज़्यादा नहीं है। मैं इतना नहीं बोलूँगी कि कितनी है, लेकिन कम है, बट फिर भी मैंने मतलब एक पहल की है इस चीज़ के लिए, और मैं बहुत आज खुश हूँ, क्योंकि आज के डेट में वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मेरी मामा को फ़ोन करते हैं जिन लोगों ने आज तक मेरी मामा को कभी फ़ोन नहीं किया। माशरे के मुख्तलिफ शोबों से वाबिस्ता ख़वातीन ने इरफाना ज़रगर के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि वो उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। एक खातून ने कहा कि ये एक बहुत ही अहम मुहिम है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और हमें इस मुहिम को हर हाल में कामयाब बनाने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम देना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि जब लॉकडाउन था तो बहुत मुश्किल होती थी सबको यहाँ पे, क्योंकि बाहर नहीं जा सकते थे तभी। तो हमने इनसे कांटेक्ट किया तो इसने हमारी बहुत मदद की, बहुत ज़्यादा, तो हमारे लिए बहुत अच्छा था वो। वादी में ख़वातीन माहवारी के बारे में बात करने में शर्म महसूस करती हैं, ताहम इस नौयत की मुहिम शुरू करना इंतहाई हौसला अफजा है। जम्मू और कश्मीर की हुकूमत ने शुमाली ज़िला बारामूला के दूर दराज इलाकों में मरकजी स्कीम MG नरेगा के तहत कई तरक्याती प्रोजेक्टों को हाथ में लिया है, जिन पर तामीरी काम भी शुरू किया गया। स्कीम के तहत मकामी मजदूर तबके से वाबस्ता अफराद को रोजगार भी हासिल हो रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। शुमाली ज़िला बारामूला में तामीर और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मरकजी स्कीम MG नरेगा के तहत कई तामीराती काम हाथ में लिए गए हैं। खास तौर पर दूर दराज और कंडी इलाकों में लोगों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए कई तामीराती काम शुरू किए गए हैं। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बड़ी कोशिश की है कि भाई हम लोगों को कोशिश करें कि ये बेरोज़गार लोग हैं इनको रोज़गार दें, चाहे वो नरेगा के थ्रू हो, चाहे 14 FC के थ्रू हो, तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को मतलब रोज़गार दें ताकि इनका अपने बाल बच्चे को पाल सकें। और तामीर और तरक्की के जो हमारे रास्ते हैं, रोड हैं या बाकी चीज़ें हैं, तो उनको हम बनाने में सूरत लाएँ, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जिले में MG नरेगा के तहत रुके पड़े तामीराती कामों को दोबारा शुरू किया गया है। ये तामीराती काम कोरोना लॉकडाउन के सबब रोक दिए गए थे। तामीराती काम दोबारा शुरू होने से मकामी मजदूरों को रोजगार हासिल हो रहा है। गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हैं, और खास कर हमारे BDO साहब के शुक्रगुजार हैं, और पंचायत अच्छी बनी है, और तरक्की आगे तक ऐसा ही चलता रहा तो इंशाअल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। तो ये नरेगा के काम हैं और FOSTF के काम हैं, ये आगे तक अगर देते रहेंगे तो हर गरीब को रोजगार अच्छा मिलेगा। हुकाम का कहना है कि बारामूला जिले के दूर दराज इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों के लिए मजदूरी ही जरिए माश है और कुछ नहीं। उनका कहना है कि जिला बारामूला के सरहदी तहसील उड़ी में तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जबकि यहाँ के मजदूर तबके को MG नरेगा के तहत रोजगार हासिल हो रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया है, जो रूरल डिपार्टमेंट हमें हेल्प कर रहा है, खासकर BDO साहब हमारे जो हैं यहाँ के बुनियार ब्लॉक के,
इन्होंने बहुत हेल्प की हमारी और लोगों को रोजगार दिया और लोग बहुत ही खुश हुए कि एक तो पैसा बनेगा, दूसरा ज़हनी दबाव लोगों के ऊपर जो चढ़ गया था 3 महीने से सर, वो भी लोग बहुत खुश हुए हैं और चाहते हैं कि ये हमें MG नरेगा के बहुत से काम दिए जाएं। मरकजी हुकूमत की जानिब से अवामी बहबूद के लिए शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमों के तहत दीही इलाकों में तरक्की को यकीनी बनाने के साथ साथ रोजगार की फराहमी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। MG नरेगा एक ऐसी मरकजी स्कीम है जिससे न सिर्फ तरक्याती एजेंडे को आगे बढ़ाया जाता है बल्कि मजदूर तबके के लिए रोजगार की जमानत भी है। जम्मू और कश्मीर में मजहबी मकामात और सयाहती शोबे को बहाल करने के मकसद के तहत जम्मू में वाक़ा बाग बहू के नज़दीक तारीखी बावे वाले माता मंदिर की तजदीद व मरम्मत और बहाली का काम अंजाम दिया जा रहा है, जबकि साथ साथ इस बाग को भी मज़ीद जाज़िब नज़र बनाया जा रहा है। कुदरत ने जम्मू कश्मीर को कुदरती वसाइल और खूबसूरत मकामात से इस कदर नवाजा है कि अगर हम इनसे मुनासिब तरीके से इस्तिफादा हासिल करें तो हमारे तमाम मुआशी मसाइल हल हो सकते हैं। यहाँ के सयाहती शोबा खास तौर पर पिलग्रिम टूरिज्म को फरोग देने के मकसद के तहत मंदिरों के शहर जम्मू में वाक़ा बाग बहू के नजदीक तारीखी बावे वाली माता मंदिर की तजदीद व मरम्मत और बहाली का काम शुरू किया गया है, जिसे तामीराती एजेंसी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी अंजाम दे रही है। स्पिरिचुअल और रिलीजियस जो टूरिज्म है वो उसको अपलिफ्ट करने के लिए, और खासकर मैं समझता हूँ कि इस स्थान को जिसके लिए कि हम सब ऋणी हैं माता के, तो और ये हमारी आस्था का स्थल है और ये उसी सिलसिले में उसी सिमत में उसी डायरेक्शन में ये कोशिश है, प्रयास है कि इसको एक नई रूपरेखा दी जाए, नया शक्ल दी जाए। बावे वाली माता मंदिर के दर्शन के लिए मुल्क के कोने कोने से यात्री मंदिरों के शहर जम्मू वारिद होते हैं। हुकूमत मजहबी मकामात की बहाली के साथ साथ यहाँ के पिलग्रिम टूरिज्म को भी फरोग देने में कोशा है और मंदिर की तजदीद व मरम्मत और बहाली का काम इसकी एक कड़ी है। मंदिर को जम्मू सकाफत के मुताबिक असर नौ तजदीद व मरम्मत और बहाली का काम अंजाम दिया जा रहा है। जितनी ये जो ब्यूटिफिकेशन हो रही है इससे लगता है कि यहाँ पे टूरिस्ट बढ़ेगा और आने वाले दिनों में जो यहाँ के दुकानदार हैं या यहाँ पे जो खड़ी फरोशी वाले हैं, शाबा वाले हैं, तो उस हिसाब से लगता है कि मतलब जब अगर यहाँ पे टूरिस्ट बढ़ेगा तो यहाँ की दुकानदारी भी बढ़ेगी, यहाँ के दुकानदारों का मुनाफा होगा, अपना कामकाज चलेगा इन लोगों का। हुकूमत जम्मू कश्मीर में मजहबी मकामात और सयाहती शोबे को बहाल करने के हवाले से संजीदा और मौसर इक़दामात कर रही है। जम्मू में जहां मंदिर की बहाली का काम अंजाम दिया जा रहा है, वहीं तारीखी बाग बहू को मजीद जाज़िब नजर बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत बाग को वुसअत देकर सयाहों की दिलचस्पी और उन्हें इस बाग की तरफ रागिब करने के लिए कई तरह के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। टूरिज्म बढ़ने के साथ हमारा ये आपको पता ही है कि हमारा ये दैविक स्थल है, बड़ी महिमा है इसकी, दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, तो इससे और भी रौनक बढ़ेगी और मॉडर्न फैसिलिटीज़ हम हमारे यात्रियों, हमारे जितने भी लोकल जम्मू के शहरी हैं, जब बाहर के टूरिस्ट हैं, उनको दे पाएँ, हमारा ऐसा जो प्रयास होगा। जम्मू कश्मीर हमेशा मजहब और टूरिज्म सेक्टर के हवाले से पसंदीदा मकाम रहा है। जम्मू कश्मीर में शोबा सयाहत से बिलवास्ता या बिलावास्ता 70% लोग वाबिस्ता हैं और अपना रोजगार हासिल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिलग्रिम टूरिज्म पूरे मुल्क में अलग मकाम रखता है।
कश्मीर में कोविड-19 लॉकडाउन में नरमी के बाद श्रीनगर के तारीखी बुलेवार्ड रोड की बहाली का काम दोबारा शुरू किया गया है। फुटपाथ और डल झील की पैरापेट वॉल इसमें शामिल है, जिस पर बहाली का काम मुल्क गिर लॉकडाउन से पहले ही जोरों पर था। यह कोरोना वायरस के फैलने और इसके फैलाव पर काबू पाने के इकदामात के बाद रुक गया। दारुल हुकूमत श्रीनगर की तारीखी बुलवार्ड रोड की बहाली और तज़य्युनो आराइश का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। लाखों रुपए की लागत से रोड की बहाली और मरम्मत का मंसूबा मुकम्मल होगा। बुलवार्ड रोड पर तामीरी काम कोरोना लॉकडाउन की वजह से रोक दिया गया था, जिसे अब दोबारा शुरू कर दिया गया है। We are proud to our government कि बहुत अच्छा काम स्टेप्स चल रहे हैं। जैसे कि हमारा ये डल लेक है, ये हमारी शान है और माशाल्लाह गवर्नमेंट बहुत अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं लोगों के लिए कि जितनी ज़्यादा ब्यूटी हम चाहते हैं उससे ज़्यादा हम गुमान भी कर सकते हैं और माशाल्लाह गवर्नमेंट भी हमारे साथ दे रहे हैं। बुलवार्ड रोड के साथ साथ तजदीद व मरम्मत और बहाली का काम डल झील की पैरापेट वॉल और फुटपाथ तज़य्युनो आराइश के हवाले से भी अंजाम दिया जा रहा है। ये काम मुल्कगीर कोरोना लॉकडाउन से कबल शद्दोमद से जारी था। ग्राल संगरी से लेकर निशात तक सड़क खस्ता थी और इसकी बहाली के लिए मैगडम बिछाया गया और ये काम मुकम्मल हो चुका है। जब से ये कोरोना वायरस का कहर आ गया है तब से पूरा जो काम रुका हुआ था, आज मैं खुद देख रहा हूँ कि काम चल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। इससे जो स्पेशली हमारे यहाँ बुलवार्ड रोड जो हमारा है ये पूरा टूटा फूटा हुआ है और इसको अगर इस वक्त ये लोग मेंटेन कर रहे हैं, ये रेस्टोर कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कदम है। रोड्स एंड बिल्डिंग्स महकमे के चीफ इंजीनियर समी आरिफ का कहना है कि कश्मीर में लॉकडाउन में नरमी के बाद 549 तामीराती प्रोजेक्टों का तामीरी काम हाथ में लिया गया है। उन्होंने कहा कि 2600 मजदूरों को इन प्रोजेक्टों के जरिए रोजगार हासिल हो रहा है, जिनमें मुहाजिर मजदूर भी शामिल हैं। आज के तारीख में कश्मीर में इस वक्त 549 वर्क्स आर इन प्रोग्रेस आफ्टर लॉकडाउन और आज की डेट में मेरे को इस वक्त 2600 लेबर्स एंगेज्ड हैं, जिसमें कि माइग्रेंट लेबर्स भी हैं और लोकल लेबर्स भी हैं। और जब से ये लॉकडाउन की रिलैक्सेशन हुई है तब से जो मैन डेज हमने जनरेट किए हैं 65,972 मैन डेज हैव बीन जनरेटेड सो फार आफ्टर द रिलैक्सेशन ऑफ लॉकडाउन। डल झील कश्मीर की शान शौकत, फख्र और शनाख्त की आला अलामत है, जबकि इससे मुंसलिक बुलवार्ड रोड की अपनी एक तारीखी अहमियत और इफादियत है। ये वाहिद रास्ता है जो जबरवन पहाड़ी के दामन में वाक़ा मुगल बागात, चश्मशाही, निशात बाग, शालीमार बाग और एशिया के सबसे बड़े बाग गुले लाला की तरफ जाता है। डल झील सयाहों का पसंदीदा मकाम है। मयारी और सेहतमंद ज़राई पैदावार के हसूल के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग बेहतरीन तरीक़ा काश्तकारी है, जिसकी मदद से सस्ती ज़राई पैदावार हासिल करके किसी भी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है और इसके साथ साथ बरामदात में इजाफा करके कीमती ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है। राजौरी में इस फार्मिंग के कितने मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत सरखेज है साकी। जम्मू कश्मीर की सरजमीं के लिए ये शेर काफी ममासलत रखता है, क्योंकि यहाँ हर तरह की काश्त होती है। सूबा जम्मू के राजौरी जिले में काश्तकार ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो पहले केमिकल पर मबनी खेती और सब्जियों की काश्तकारी करते थे, जो कि नुकसानदेह साबित हो रही थी।
ये 3 महीने में वर्मी कंपोस्ट से तैयार हो जाता है खाद, तो वो हम अपनी सब्जियों में लगाते हैं। फिर हम हर किस्म की यहाँ पे सब्जी तैयार करते हैं। गर्मी जैसे आजकल गर्मी में हम करेले, कद्दू, भिंडी, खीरा, तोरी हर चीज़ जो है गर्मियों की वो हम यहाँ पे तैयार करते हैं। इससे हमारा एक व्यवसाय बना रहता है, लोगों को रोज़गार मिलता है। 4-6 बंदे और हमारे साथ काम करते हैं, उनको भी साथ में रोज़गार मिल जाता है। मरकजी हुकूमत ने किसानों की फलाह बहबूद के लिए कई स्कीमें मुरतब की हैं, जिनकी बदौलत राजौरी में ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत मुख्तलिफ फसलों और सब्जियों की काश्तकारी हो रही है। इन किसानों और काश्तकारों को पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए जानकारी भी फराहम की जाती है। किसानों का कहना है कि वो सरकारी इक़दाम से मुस्तफीद हो रहे हैं। बड़ी डिमांड है हमारी सब्जी की, रजौरी में जाती है सब्जी, हमारी देसी सब्जी है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कोरोना वायरस चल रहा है इस टाइम, तो इससे हमारी सब्जी घर की सब्जी है, ये सभी लोग अच्छी तरह से पसंद करते हैं ये सब्जी। हमारे जब हमें घर का कोई काम खत्म करके हम सभी खेत में काम करते हैं, हमारे घर का सारा खर्चा इसी सब्जी से ही चलता है, हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं सब। माहिरीन ज़राअत का कहना है कि जिले में ऑर्गेनिक फार्मिंग को फरोग दिया जा रहा है और इस मकसद के लिए किसानों और काश्तकारों को सब्सिडी भी फराहम की जाती है। उन्होंने कहा कि किसानों और काश्तकारों में ऑर्गेनिक खेती से मुताल्लिक पैदावारी सलाहियत पैदा की जाती है। उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में फसलों और सब्जियों की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक खेती से बेहतर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसमें ऐसा है कि देसी खाद जो है इसमें एक तो रेट ज़्यादा मिलता है। ये ज़रूर हो सकता है कि कहीं कोई प्रोडक्शन में थोड़ी सी कमी आ जाएगी पहले साल, आगे वो आस्ता आस्ता जब ज़मीन जो है वो उसी खाद पे वो फसल उगाना शुरू कर देगी तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं तो किसान भाइयों से यही अपील करूँगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाएं, उसका रेट भी अच्छा मिलता है, मार्केटिंग भी अच्छी है। राजौरी में मुख्तलिफ फसलों और सब्जियों की काश्तकारी करने वाले किसान और काश्तकारों की एक खासी तादाद सरकारी स्कीमों और बेदारी मुहिम से मुस्तफीद हो रही है। अब नौजवान नस्ल भी सरकारी स्कीमों से फायदा उठाने के लिए आगे आ रही हैं। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमें। आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।